Hello dear friends, this video is for the youngsters. देखिए प्यारे बच्चों, look dear youngsters or the children, please give up eating the oily things. I mean fast food. Fastest food is very harmful and deleterious for you. Spare some time from your busy schedule. Please take exercise. Exercise is very important for you youngsters. You wear beautiful branded precious clothes, shoes. You spend a lot of money to look beautiful and handsome. Dear friends, until you take exercise, जब तक आप व्यायाम नहीं करेंगे, you can't prettify yourself, because beauty comes or emerges from inside. जो सुंदरता होती है वो अंदर से निकलती है. In the same way, जैसे कि आप बाइक को सर्विस कराते हैं, like the bike is required regular services to give good mileage. In the same way, you are required to take exercises. Otherwise, you will be surrounded with so many problems. No, you will be inactive. आप निष्क्रिय हो जाएंगे. You will sit with laziness. You can't look smart until you take exercises. You have to return to the natural life. Eat healthy food. Chow-mein, burger, momos. Do you know the sauce of momos is so spicy. When you take the taste of the sauce, it is so spicy. When it goes inside you, so do you not think that it will harm your liver and other soft or tender parts of your body? आप क्यों खा रहे हैं? You are enjoying these foods for your tongue. Dear friends, एक बार अगर आप बीमार पड़ गए, if you once fell ill, do you know how much money you are required to recover? ठीक करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है? These hospitals will suck you and you will totally financially paralyzed. No relatives can help you to supply the financial needs. इसलिए dear friends, अगर आप मेरी बात मानो, if you follow me, I want to say you youngsters today, please right from today, आज से ही open your eyes and do what I am telling you. और आप वो करिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. डियर फ्रेंड्स, ये तो करना ही है अच्छी ज़िंदगी के लिए. नहीं कर पाएंगे ना तो आप किसी काम को एक्टिव नहीं कर सकते हैं, किसी काम को अच्छा कर ही नहीं सकते. जब बॉडी अच्छी नहीं होगी आपका, तो आपका वर्क कैसे अच्छा हो सकता है? आप एक्टिव होकर करेंगे नहीं, आपका मन ही नहीं लगेगा, अंदर से आत्मा ही नहीं होगी आपकी करने की, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा नहीं है. आपने शरीर से वर्क नहीं लिया. ये ईश्वर ने, गॉड हैज़ मेड दिस बॉडी वेरी ब्यूटिफुल, बट you will have to energize this body. When you are eating so many healthy things, so many fatty things, और उसको पचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? You are not doing any physical labor. Do you know? You will certainly fall ill if you are leading this type of ideal life. Okay dear friends, so from today onwards, आज से ही
आपको कुछ समय निकालना है. यू हैव टू स्पेयर सम टाइम अंडर एनी कंडीशन फॉर योर फिजिकल हेल्थ, बिकॉज फिजिकल हेल्थ कैन बी ओके only when you take exercises. Not only physical health, my mental health and physical health both will be good when you take the exercises. सूत्र है, ये फार्मूला है ज़िंदगी का, लाइफ का. अगर आप लास्ट तक, बुढ़े होने तक आप एक्टिव रहना चाहते हैं तो भाई आपको ये करना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी. Dear friends, exercise is as important for the body. Exercise is as important for the body as food. एक्सरसाइज यानी व्यायाम उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए जितना कि हम खाना खाते हैं. और खाना खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इफ़ यू टेक फूड एंड इफ़ यू डोंट टेक एक्सरसाइज, तो खाना आपका पचेगा नहीं, लगेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा. जब आप एक्सरसाइज करेंगे तभी आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं आपकी बॉडी में. अदरवाइज वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी नहीं, ऐसे ही चला जाएगा आपका मटेरियल. तो डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी बात है. भले ही आप इग्नोर कर लें इस वीडियो को, लाइक ना करें, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ सीख लीजिए मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है यार. हमारा हिंदुस्तान कितना पीछे जा रहा है. कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे पहनेंगे, एवरीबडी इज़ फॉन्ड ऑफ वेयरिंग वेरी ब्रांडेड लेटेस्ट ड्रेसेस, लेकिन इस शरीर को अच्छा रखने के लिए यार भाई मेंटेन करिए यार. यू आर रिक्वायर्ड टू टेक एक्सरसाइजेस. हमने अभी बताया एक्सरसाइज इज एज इम्पॉर्टेंट एज फूड फॉर द बॉडी. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू टेक एक्सरसाइज. अदरवाइज what exactly would happen to you? अन्यथा होगा क्या? we और you will suffer weakness. आपको कमज़ोरी आ जाएगी शरीर में. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे कमज़ोरी आएगी, फूड लगेगा नहीं जो आप खा रहे हैं. ओके, माइंड प्रॉब्लम हो जाएगी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, माइंड काम भी नहीं करेगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका पूरा बॉडी में जा ही नहीं पा रहा. और जब ब्लड सर्कुलेशन पूरा माइंड तक, पूरे बॉडी में नहीं जाएगा तो आप एक्टिव रह ही नहीं पाएंगे. जहाँ बैठेंगे बस आलस की तरह आपका शरीर रहेगा, मन लगेगा नहीं, हंस के बात ही नहीं कर पाएंगे. क्योंकि हंसेगा तभी आदमी ना जो अंदर से अच्छा होगा. तो वो आपने कोई काम ही नहीं किया जो आप किसी के सामने हंस सकें, मुस्कुरा सकें. वो खुल के मुस्कुराहट निकलेगी नहीं जो नेचुरल स्माइल होती है. धक्का दे के आप मुस्कुराहट को बाहर ला रहे हो तो कौन मजाक करेगा, कौन किसको अच्छा लगेगा. तो डियर फ्रेंड्स, राइट फ्रॉम टुडे, आज से ही अगर आपको अपना मानसिक और शारीरिक हेल्थ अच्छा करना है तो आपको व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू टेक एक्सरसाइजेस. ओके डियर फ्रेंड्स, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन. अदरवाइज अन्यथा यू विल बी सराउंडेड, आप घिर जाएंगे विद अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कॉम्प्लिकेशन. Nobody can help you that time if the case goes out of the hand of the doctor. और चला ही जाएगा क्योंकि यू आर किलिंग योर सेल्फ यार. हमारा शरीर है, इतनी योनियों के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है और उसको ऐसे किल कर रहे हो यार. हैं, आप कॉस्मेटिक आइटम पोत रही हो, लगा रहे हो यार, क्या इसका मतलब है? अंदर से आप हेल्दी खाना खाओ, अपने आप आपका ब्यूटी, आपका ग्लो अपने आप आएगा भाई. ग्लो बाजार या आर्टिफिशियल ग्लो से कुछ मज़ा नहीं आता. जो नेचुरल ग्लो होगा ना, उसकी शाइनिंग, उसका पिंकनेस जो होता है, वो ब्लड का जो पिंकनेस होता है ना, उसकी मज़ा जो होती है ना, वो अलग ही दिखाई पड़ती है. तो डियर फ्रेंड्स, कुछ करिए. यू आर रिक्वायर्ड टू डू समथिंग फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. देखिए विदेशों में क्या होता है, हमारा होम जिम होता है, महिलाएं होम जिम करती हैं. लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में क्या होती है, महिलाएं केवल अपना घरेलू, केवल हाउस होल्ड, केवल डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करती है, अपनी ओर ध्यान नहीं देती है. बच्चों को बढ़िया खाना बनाना, ये करना वो करना. अपने शरीर को आप अपना भी तो ध्यान दो. आप शरीर भी और एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है. कैंसर तो होना ही है. कैंसर क्यों होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? कैंसर इसीलिए होता है जब ऑक्सीजन आपके पास जा ही नहीं रही, ऑक्सीजन पूरा आप सर्कुलेट ही नहीं कर रहे हो. इसलिए प्राणायाम करो, योगा करो,
एक्सरसाइज करो। इससे क्या होगा, खुल के आप ऑक्सीजन ले पाएंगे। और जब खुल के ऑक्सीजन लेंगे, डीप ब्रीथिंग करिए, उसको होल्ड करिए और केवल सांस पे आपका ध्यान होना चाहिए। फिर धीमे धीमे छोड़िए, फिर लीजिए डीप ब्रीथिंग और सांस पे ध्यान रखना है आपको, थोड़ा होल्ड करना है। फिर सांस को धीमे धीमे सांस पे ध्यान रखते हुए छोड़ना। ऐसा आपको 5 मिनट करना। अगर 5 मिनट करेंगे तो चमत्कार आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। आप भी सोचेंगे मैंने आपको क्या बताया। ऑक्सीजन, बॉडी को ऑक्सीजनेट करने के लिए, इफ यू रियली वांट टू ऑक्सीजनेट योर बॉडी, आपको क्या करना है, बस आपको नाक से हवा निकालनी है। इससे क्या होगा, जितनी भी अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है वो बाहर निकल जाएगी और पूरा शरीर आपका ऑक्सीजन से भर जाएगा। फिर मज़ा देखिए आप। ये तो करना ही है, इट इज़ जस्ट टू बी डन। आई वॉन्ट टू अवेकन डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जगाना चाहता हूँ यार। कुछ ऐसा करो, नया भारत बनाना है हमको। और नया भारत तभी अच्छा बनेगा जब हम एक्टिव होंगे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, हमारा शरीर अच्छा होगा, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। कपड़े अच्छे पहनने से, जूते अच्छे ब्रांडेड पहनने से कभी मज़ा नहीं आएगा यार। बाहरी दिखावा पे क्यों विश्वास करते हो यार इतना। अंदर का स्ट्रक्चर अच्छा बनाओ, अपने आप मज़ा आएगी। जब आप बैठेंगे ना, एक्टिव होकर बनेंगे, नेचुरल मुस्कुराहट आएगी, तब मज़ा आएगा आपको ज़िंदगी जीने का यार। तो डियर फ्रेंड्स, आज से शुरू करिए। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट राइट फ्रॉम टुडे। यू हैव टू, बिकॉज यूथ और द यंगहुड इज़ द गोल्डन टाइम ऑफ द लाइफ। यंगहुड में अगर आपने अपने शरीर को अच्छा नहीं किया ना, ये पूरी लाइफ चलेगा लाइफ। अगर इसको अगर मजबूत नहीं बनाओगे ना, तो ये बहुत जल्दी बुढ़ा हो जाएगा और अपनी जनरेशन को कुछ नहीं दे पाओगे। मेरे बीबी भी गाली सुनाएगी, क्योंकि आपके कर्म है। पिता परमेश्वर ने जो सब योनियों से बढ़ के आपको जो इंसान का जन्म दिया ना, उसको आपने ठुकराया है, आपने उसको इग्नोर किया है। अरे यार, ये शरीर को मेंटेन करो। इसमें क्या है, आप इज्जत मिलती है जब अच्छे रहेंगे, अच्छे दिखेंगे, तो आपके बच्चों को भी अच्छा लगे, मेरे पापा अच्छे हैं। आपकी वाइफ को, सारे रिश्तेदार जितने होंगे आपके, ससुराल वालों के भी अच्छा लगे कि मेरे जीजा ये हैं ये हैं। तो ऐसे सभी के लिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, सभी को अपना होम जिम, घर में एक्सरसाइज करो। कोई ज़रूरी नहीं जिम, पैसा नहीं है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है हम जिम में जाना यार। घर में सारी एक्सरसाइज। पुराने ज़माने में क्या जिम थे क्या? The gyms were not available in the old time. The people did only the basic exercises, and they were the best exercises. Baba Ramdev is also, right from very beginning, he has been training us yoga. But he just learned something from him, and he started doing yoga, pranayam. प्राणायाम से आपसे ऑक्सीजन पूरे पूरे रोम रोम में भर जाएगी और आपकी सारी जो प्रॉब्लम अंदर होंगी ना, वो बाहर निकल जाएंगे। फिर क्या होगा, 100 साल तक आप जी पाएंगे। अदरवाइज़ जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? पढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे आएंगे? डियर फ्रेंड्स, इट्स नेचुरल, इसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज़ नो। तो इफ़ यू रियली वांट टू स्ट्रेंथन योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू एम्पावर योर सेल्फ, अगर अपने को आप इम्पावर, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, प्राणायाम करना ही पड़ेगा, डीप ब्रीथिंग करनी ही पड़ेगी। ये सब बहुत ज़रूरी है आपके मानसिक और शारीरिक हेल्थ के। डियर फ्रेंड, जब आप अच्छे ढंग से एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा टाइम निकालिए, लेकिन टाइम तो निकालना ही पड़ेगा आपको। और आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी तो आपका भाग्य भी अच्छा नहीं होगा, आपका प्रोफेशन अच्छा नहीं होगा, आप पैसा अच्छा कमा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप सभी को बहुत ज़रूरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, फॉर ऑल ऑफ यू अंडर एनी कंडीशन टू स्पेयर टाइम फ्रॉम योर बिजी लाइफ फॉर योर बॉडी, राइट। क्योंकि पूरे परिवार का, सारे मेंबर्स का, ऑल द मेंबर्स आर डिपेंड ऑन यू, अपॉन योर हार्ड वर्क। If you are not financially stronger, how can you finance your children in their studies? They can't
डू द हायर स्टडीज़। जिसके पास पैसे होते हैं ना डियर फ्रेंड्स, वो अपने बच्चों को कुछ भी कहीं पे भी पढ़ा सकता है। और पैसे नहीं हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे? भले ही आपकी इच्छा बहुत हो, तो आप आज से जुट जाइए भाई, अगली जनरेशन के लिए, कि जो हम नहीं कर पाए हमें अगली वाली जनरेशन को कराना है। ये बहुत ज़रूरी है, तभी कर पाएंगे ना जब आपका शरीर अच्छा हो। पहले ही से आपने सड़न डाल दिया, गंदा गंदा खा के, चाउमीन वगैरह दुनिया भर की चीज़ें खा करके आपने सब कुछ हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे। अरे फल फ्रूट खाओ मेरे भाई, लीफी वेजिटेबल लीजिए आप। जो आपको साग अच्छा नहीं लगता है ना, हरा सब्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप समझ ही नहीं पा रहे। हेल्थ तभी अच्छा होगा जब आप ये सारी चीज़ें खाएं। आपको कम से कम 30 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट से आधा घंटा आपको अपने शरीर के लिए निकालना है, अंडर ऑल कंडीशंस। नहीं फिर हमको दोष मत देना, फिर हमको न कहना यार। मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना है, क्योंकि पैसा अस्पताल में इतना लगता है ना, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। सिंपली अस्पताल में जाना पड़ेगा, जहाँ क्या होगा, अनट्रेंड डॉक्टर होंगे और आप नहीं मर रहे होंगे तो आपको मार डालेंगे। थोड़ा बुरा नहीं लगे, आई एम सॉरी, आई एम स्पीकिंग दिस वर्ड्स, लेकिन यार आई एम योर वेल विशर, आई एम योर दोस्त। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि प्लीज़ राइट फ्रॉम टुडे, आज से ही आप सोच जाइए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप टहलिए, जॉगिंग करिए, जॉगिंग बहुत ज़रूरी है। रेसिंग करिए, इससे क्या होगा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका पूरा ऊपर से नीचे तक जाएगा। इज इट ओके डियर फ्रेंड्स? यस। और आप फल फ्रूट, लीफी वेजिटेबल, मतलब हरी सब्जियां जरूर खाइए, इसको इग्नोर मत करिए। फ्रूट तो लेना ही लेना है आपको। अरे इतने सारे फ्रूट्स स्पेशली विंटर सीजन में आते थे, इतने कम पैसे, इजी, आई मीन यू आर मेड अवेलेबल ऑल दिस फ्रूट्स एट वेरी इजी रेट्स। टमाटर से लेकर सारी चीज़ जो मिलती है सब खाइए आप। स्टार्टिंग पहले जब खाना खाइए ना, तो पहले आपका खाना जो है वो सलाद के रूप में ऐसे ही होना चाहिए। गाजर हो, टमाटर हो कटे हुए, चुकंदर हो, और मूली हो, और जो सस्ते सस्ते हों वो सब खाइए आप। गोभी बंधा हो वो खाइए, काट के उसको खाइए। अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर 1 महीना भी ऐसा कर लेते हैं तो अपने आप सारी बीमारियाँ भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये करना पड़ेगा, पहले आपको यही सब चीज़ें, इसके बाद खाना खाइए, और उसके बाद फिर खाना, जब खाना खाइए उससे पहले भी 2-4 चीज़ें ज़रूर खाइए, गाजर वाजर इस टाइप से, और इसके बाद फिर खाना शुरू करिए। फिर देखिए आपका लीवर कितना स्ट्रांग हो जाएगा। बिकॉज लीवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। विदाउट इट वी विल सडनली वीकन आवर बॉडी। सब कुछ खत्म, लीवर खत्म, सब कुछ खत्म। तो फैटी लीवर के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। पेट फूला चला आ रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो एक्सरसाइज करोगे ना तभी तो ये रिड्यूस होगा। उसके लिए क्या करना है, फैटी लीवर भी हो गया तो आपको हल्दी लीजिए, नींबू लीजिए, शहद लीजिए, उसका हल्का गर्म पानी करके उसमें डालिए, काली मिर्च पाउडर डालिए, और उसको, दालचीनी हो तो उसका पाउडर डाल दिए, उसको फिर आप रोज़ लीजिए। अगर आप 21 दिन तक लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं जो पेट संबंधी होंगी सब खत्म हो जाएंगी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके डियर फ्रेंड्स, तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ बताई। अब आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, आपको कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ ना पी के आप दूध पीजिए यार, दही खाइए, दही बहुत फ़ायदा करता है पेट के लिए, राइट। ये सब करना ही है आपको। नमस्कार, योगा, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका माइंड जो है डिप्रेशन में जा रहा है, आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, इसका मतलब आपका माइंड ठीक नहीं है। और जब तक मानसिक हेल्थ आपका अच्छा नहीं होगा ना, चाहे इतने आप रईस हो, चाहे इतने पैसे वाले हो ना, इस संसारिक मज़ा आप ले नहीं सकते भाई। जब मानसिक हेल्थ अच्छा होगा तभी मज़ा आएगा। सब नाच रहे होंगे, फिर आपको नाचने में मज़ा नहीं आएगा। आप देखेंगे लेकिन मज़ा नहीं आएगी, मुस्कुराहट नहीं निकलेगी। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, आई हैव मेड दिस वीडियो विद एन इंटेंशन टू ओपन योर आइज। You are very dear to me. I want you take exercises and boost up your body. With this, I am coming to an end. Radhe Radhe.
बेस्ट ऑफ लक डियर फ्रेंड्स, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।